عوام سوال پوچھتی ہے کہ انصاف کہاں ہے؟ کیا یہ وہ انصاف ہے جو عوام کو دیا جاتا ہے؟ 1 کروڑ کا جو فراڈ ہوا ہے تو 9 ماہ گزر جانے کے باوجود آپ کو ابھی تک انصاف کیوں نہیں ملا؟ مجھے انصاف اس لیے ملا کہ وہ محلے میں تھا، پراپرٹی ڈیلر تھا، بند پہ نا زمین، کہتا ہے یہ میری سسرال کی زمین ہے، تو کہنے لگا اس طرح نا آپ ایسا کریں کہ یہ زمین میں بیچ رہا ہوں تو آپ بھی لے لیں۔ میں نے اسے مدرسے کے لیے کہا ہوا تھا، میں کہا چلو جی 50,000 روپے مرلہ دے رہا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 1 کنال دے دیں مدرسے کی۔ کوئی 2 سال 1.5 سال گزر گیا، میں اس کے گھر جا کے تھک گئی، لیکن نہیں پیسے دیے۔ 96 کنال نکل آئی ہے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، پیسے لے گیا، سب کچھ لے گیا، کبھی کہتا رجسٹری ہو رہی ہے، آج مل رہی ہے، گھنٹے میں مل رہی ہے، 2 گھنٹے میں آپ کے نام ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے سارا، اور 2 نمبر رجسٹری بنا کے دی ہیں جعلی، وہ ہیں میرے بیگ میں۔ 35 لاکھ روپیہ باجی سے لے کے گیا وہ زمین کا، کہ میں نے وہ نکلوائی، اس پہ کاغذوں پہ پیسے لگے ہیں، تو چلے باجی جو نکلے گا نا ہم 3 حصے کر لیں گے۔ گالیاں دے کے جاتا ہے، پستول میرے گھر میں آ کے دکھا کے گیا مجھے۔ تو آپ متعلقہ تھانے میں اس کے خلاف اپلیکیشن نہیں دی؟ میں نے بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیس ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بننا۔ انہوں نے کہا کہ کیس ہے، پاویں تشدد کرے، پاویں جو مرضی کرے، ایسا سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ پولیس کا موقف ہے۔ جی السلام علیکم جی، آج ہم گلشن راوی کے علاقے پر موجود ہیں اور یہاں کی عوام آج بھی انصاف کے لیے متعلقہ تھانے میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ اس علاقے میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں گا کہ اس علاقے میں، گلشن راوی کے علاقے میں 4 تھانے جو ہیں بنا دیے گئے۔ سمن آباد تھانہ، گلشن راوی تھانہ، ساندا تھانہ اور اس کے علاوہ ملت پارک تھانہ یہاں پر بنا دیے گئے۔ لیکن عوام سوال پوچھتی ہے کہ انصاف کہاں ہے؟ ہمیں کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ جب کوئی شہری انصاف کے لیے تھانوں کا رخ کرتا ہے تو انہیں سب سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کیا تمہارے پاس پیٹرول کے پیسے ہیں؟ اگر وہ خدا نخواستہ اس کو ایمرجنسی لاحق ہو جائے، تھانے کا رجوع جب کرتا ہے تو اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے ہماری حدود سے باہر ہے۔ کیا یہ وہ انصاف ہے جو عوام کو دیا جاتا ہے؟ عوام قربانیاں دے، عوام ٹیکس دے، مگر عوام جب پوچھے کہ ہمیں انصاف چاہیے تو انہیں پیٹرول کا خرچہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ گلشن راوی کے علاقے میں 4 تھانے ہونے کے باوجود شہری جو ہے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے اور آج بھی اپنے تحفظ کے لیے دہائی دینے کے لیے کھڑا ہے۔ آج ہم تھانہ گلشن راوی کی حدود پر موجود ہیں اور یہاں ایک واقعہ ایسا رونما ہوا ہے کہ جس میں ایک ضعیفہ عورت ہے، اس کے ساتھ تقریباً 1 کروڑ روپے کا فراڈ ہوا ہے۔ وہ قسمت میں ہوا کہ جی بتایا یہ جاتا ہے کہ اس عورت نے، یہ کیمرہ مین میرا دکھا سکتا ہے کہ اس عورت نے مدرسے کے لیے زمین خریدی اور سارے واقعہ جو ہے یہ بتائیں گی۔ زمین خریدی مگر 9 ماہ گزر جانے کے باوجود اسے انصاف نہیں مل سکا، جبکہ آج تھانہ گلشن راوی میں جو اوپوننٹ بندہ جو تھا جس نے فراڈ کیا ہے وہ انٹرم بیل پہ تھا، تھانہ ساندا میں اس کو بلوایا جاتا ہے، لیکن یہ عورت آج بھی انصاف کے لیے دستک دے رہی ہے۔ اسے کیوں نہیں انصاف مل رہا؟ ہم اسے جانتے ہیں کہ اصل حقائق ہیں کیا۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ 1 کروڑ کا جو فراڈ ہوا ہے تو 9 ماہ گزر جانے کے باوجود آپ کو ابھی تک انصاف کیوں نہیں ملا؟ مجھے انصاف اس لیے ملا کہ وہ محلے میں تھا، پراپرٹی ڈیلر تھا، اور اس کی سسرال کوئی 50 سال سے ادھر ہی ہے، 38 سال میری شادی کو ہو گئے ادھر ہی، میں جانتی تھی۔ بند پہ نا زمین، کہتا ہے یہ میری سسرال کی زمین ہے، اور کس جگہ تھی؟ یہ 4 نمبر ٹی پہ، تو کہنے لگا اس طرح نا آپ ایسا کریں کہ یہ زمین میں بیچ رہا ہوں تو آپ بھی لے لیں۔ میں نے اسے مدرسے کے لیے کہا ہوا تھا، میں کہا چلو جی 50,000 روپے مرلہ دے رہا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 1 کنال دے دیں مدرسے کی جگہ، وہ 10 لاکھ کی بنی اور 3 لاکھ میں نے رجسٹری کا دیا۔ پھر میری نا بیٹیاں بھی میرے پاس آئیں، بچے 3، میں نے ان سے کہا، میں کہا سستی زمین ہے، اگر لینی ہے تو لے لو۔ انہوں نے بھی لے لی 15 مہینے۔ اس طرح نا ہم نے تقریباً 9 کنال جگہ لی، اس سے پیسے اسے دیے، ساری پیمنٹ گھر آ کے لیتا رہا، بہنوں کے سامنے لیتا رہا، جو آئی ہیں نیچے میرے کرائے دار ہیں، سب ہے، مارکیٹ ہے میری۔ ہم نے نا اسے پیسے دیے، کوئی 2 سال 1.5 سال گزر گیا، میں اس کے گھر جا کے تھک گئی، لیکن نہیں پیسے دیے۔ اخیر میں نے نا یہ جناب SSP نہیں ہے اردو بازار کے پاس، فیصل، کیا نام ہے، فیصل کامران، DIG فیصل کامران، DIG فیصل کامران کے پاس گئی درخواست لے کے۔ میں نے انہیں بتایا، میں کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرا میاں فوت ہو گئے ہیں،
और एक मुझे शौक़ था कि मैं मरने से पहले एक मदरसा बना लूँ। तो मैं कही ऐसे ऐसे मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने फिर मुझे सांदे थाने भेजा, फिर मैंने सांदे थाने पर्चा कटाया, फिर मैं एसपी के पास भी गई। ऐसे करते करते 9 माह हो गए। फिर मैं एसपी ज़ीशान के पास भी गई, नवीद एसएसपी के पास भी गई, और सीधा। लेकिन ये है कि ये बड़े अफसर तो अच्छे हैं, ये सारे काम करते हैं, हमें फिर इस थाने में भेज देते हैं। लेकिन आज 9 महीने हो गया, कोई इंसाफ नहीं। ये कभी स्टेशन में भाग जाता है, कभी हाई कोर्ट भाग जाता है, कभी कहीं भाग जाता है। मुझे पागल कर दिया, क्योंकि मेरे चारों वाल दिल के बंद हैं। मेरा बाईपास लिखा हुआ है डॉक्टर ने। मगर चारों वाल बंद होने के बावजूद, आप 9 माह गुजर जाने के बावजूद आप थानों के चक्कर लगा रही हैं, मगर अभी तक आपकी दादरसी नहीं हो सकी। दादरसी नहीं हुई। मैं तो मरीम नवाज साहब से कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, उसे पकड़ा जाए, उसे पूछा जाए कि कहाँ पैसा गया सारा। और 2 नंबर रजिस्ट्री बना के दी हैं जाली, वो हैं मेरे बैग में। जी नाजरीन, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको दिए गए जाली, ये दिखा रही हैं मैम। और ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे फेक हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से, इन डॉक्यूमेंट्स की बिना पर उस शख्स ने, जुल्फ़कार ने और जुल्फ़कार, इम्तियाज़ और इलियास ने इनसे मदरसे की ज़मीन देने के लिए 1 करोड़ रुपया हड़प कर लिया। और आज थाना जो है वो बेबस है और उसको गिरफ्तार करने के लिए किसी किस्म का कोई मुस्बत इक़दामात नहीं उठा रही। उनकी वजह से फिर मैं इधर आई। वहाँ मैं कचहरी गई, उनका नामो निशान नहीं है ज़मीन का, रजिस्ट्रियों का। और एक जुल्फ़कार है, एक इम्तियाज़ है, इन दोनों ने ना मुझे लूटा है। नहीं, जुल्फ़कार और इम्तियाज़ कहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं? ये हमारे मोहल्ले के हैं। ये जो भाई खड़े हैं ना, इनका बिनोई है, सांडू है इनका। तो हमारे मोहल्लेदार ही थे, देखे मोहल्लेदार होकर उन्होंने लूटा ऐसे मुझे। तो जुल्फ़कार अब पैसे नहीं देना चाह रहा? इम्तियाज़, इलियास और जुल्फ़कार दोनों ही नहीं दे रहे। इंटरम बेल करा के पेश हो गए हैं कि ये हम तो बेल करा के गए, ये और झूठ, मुझे झूठा किया जा रहा है हर जगह पे, बताएं। और जबकि इश्तिहारी हो गया, 1.5 महीना इश्तिहारी हो गया हुए, नहीं पकड़े गए। आज इंटरम करा के ना आ गए। 9 महीने से पकड़े नहीं जा रहे, 8 महीने से दोनों ही। मुझे माजी ये बताएं कि जब आपने ज़मीन खरीदी तो खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं? मैंने ना, मुझे वो कागज़ दिखाए थे, वो आए हुए उनके रिश्तेदार, उनके मुझे स्टाम्प दिखाए कि ये हमारी ज़मीन विरासत चढ़ने गई है, और विरासत चढ़ गया तो आपकी रजिस्ट्री हो जाएंगी। इस बात पे हुआ था सारा। मगर वो तो जो ज़मीन आपने ली मदरसे के लिए, जो 1 कनाल की ज़मीन ली आपने खरीदी, उसके लिए उन्होंने कह दिया कि ये हमारी विरासती जगह है। सारी ज़मीन ही, एक नहीं, वो तो उन्होंने किलों के हिसाब से रखी हुई थी वहाँ। जगह किस जगह है? 4 नंबर टी पे। 4 नंबर? 4 हाँ जी, सांदे में। तो बस वहीं पे उन्होंने धोखा। ये आ जाती हैं इनसे, भाई से वगैरह से पूछा। मुझे ये बताएं कि अभी आप एसएचओ के पास, सांदा एसएचओ के पास गए थे? मुझे बुलाया है कि आज ना हमने सामने बिठाते हैं। मैंने कहा बिठाओ, सो बिस्मिल्लाह, चोर नहीं तो चोर के भाई की हमें बिठाओ ना। 9 महीने के बाद आज मत्थे लग रहा है वो। 9 महीने की 1.25 साल ही हो गया। तो मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी आदि भी जान नहीं रही। अब मेरे से चला भी नहीं जाता। तो 6 बजे, पहले 4 बजे का कहा, फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया जी वो 6 बजे आएगा। अब मैं 6-6:15 बजे आई हूँ, अभी नहीं है। कहते हैं जी अभी हम फ़ोन करते हैं, वो आया। बस थाना भी ऐसे बिका पड़ा ही है। हाँ जी, पुलिस रली है तो काम होया ना, सारा काम हो रहा है। एक बेवा औरत को सब ने पागल किया हुआ है। मरीम नवाज साहब बस ये अपील है कि मेरा पैसा दिलवाया जाए बस, या मुझे ज़मीन दिलवा दे। मेरी क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं किसी से। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरे बच्चों का पैसा है, मेरा पैसा है, बेवा का पैसा है। ये मेरी बहन का 1 का 10 लाख है, क्या करूँ मैं बताएं? इधर आओ। ये मेरे पास फाइल है, सही है, लिखा हुआ है। मेरी एंजियोग्राफी हुई है। उन्होंने मेरा बाईपास बताया है, वो करते नहीं। वो कहते हैं हमने इनका बाईपास किया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे यरकान, शुगर सब कुछ है। तो आज मुझे 8 साल हो गए, 10 साल दवाई खाते हुए। इतनी बीमारियां होने के बावजूद अब थानों के चक्कर लगा रही हैं। आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं हर दफ्तर में जा चुकी हूँ। जी मैम, आप बताइएगा कि आपके साथ फ्रॉड क्या हुआ? मेरे साथ फ्रॉड ये हुआ कि ये बाजी है ना, बाजी फातिमा, इनके घर में मेरा आना जाना, ज़ाहिर मेरी बहन बनी हुई, बहनें हम दोनों। तो इन्होंने किसी से ज़मीन ली, तो मुझे भी इन्होंने कहा कि आप कागज़ हैं मेरे नानकों के, मेरे नाना अबू हैं, वो फोत हो गए, हमारे बड़े नहीं हैं।
तो मेरी खाला कहती कि आप ज़मीन का पता करवाएं। तो बाजी से मैंने बात की तो बाजी कहती ये दे रहा है ज़मीन, तो इससे आप कागज़ दिखाओ, जो निकलेगा दिखा देगा हमें। साल बाद उसने बताया कि आपकी ज़मीन निकल आई है, 96 कनाल निकल आई है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। पैसे ले गया, सब कुछ ले गया। कभी कहता रजिस्ट्री हो रही है, आज मिल रही है, घंटे में मिल रही है, 2 घंटे में आपके नाम हो रही है, ये हो रहा है। 35 लाख रुपया बाजी से लेके गया वो ज़मीन का, कि मैंने वो निकलवाई, उस पर कागज़ों पे पैसे लगे हैं, तो चले बाजी जो निकलेगा ना हम 3 हिस्से कर लेंगे। ये उसने रोला, ना वो ज़मीन ना वो आदमी, बल्कि मेरे घर आके गोलियां दिखा के गया हमें। पिस्तौलें उसकी तस्वीर दिखाऊं मैं आपके पास? मेरे पास तस्वीर है उसकी, उस आदमी की। है, मुझे कहता है कि मैंने इनको गोली मार देनी है अगर किसी ने हमें कुछ किया या टॉर्चर किया। हमें घर में आके टॉर्चर करता है, वो गालियां दे के जाता है। पिस्तौल मेरे घर में आके दिखा के गया मुझे कि बाजी फातिमा के बेटे को मैंने मार देना। ये ऐसे कर रहा है कि उसकी बीवी है, हामला थी, वो जाती थी हॉस्पिटल। मुझे कहता वो हॉस्पिटल जाती है, मेरे आदमी पीछे जाते हैं, तो मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे मिला मैंने इसको मार देना। नहीं तो मुझे ये बताएं कि जब वो पिस्तौल लेके आपको थ्रेट करता था, आपको तशद्दुद का निशाना बनाता था, तो आप मुतलका थाने में उसके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दिया? मैंने बताया था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ये केस है, इसका कुछ भी नहीं बनना। उन्होंने ये कहा मुझे। उन्होंने कहा कि केस है, भावें तशद्दुद करे, भावें जो मर्जी करे, ऐसा से कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का मौका है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने दरख्वास्त दी। वो कहते ये क्या करनी दरख्वास्त, आपका केस चल रहा है, बस इसी में सारा कुछ हो जाना। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, ना इंसाफ मिल रहा है, ना वो आदमी है। वो कहता है कि मैं तो बंदा मार के थाने में नहीं जाता। अच्छा। हाँ जी, वो उसके अल्फाज है। ये कहता है मैं थाने में नहीं जाता बंदा मार के भी, ये उसके अल्फाज है। अब बताएं हम क्या करें, हमें भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। कर्जी हो गए इनकी वजह से, पैसे दे दे के। आप यकीन करें कि इतना हमारे पे कर्जा है, इतने गरीब है हम लोग, बता नहीं सकते। लेकिन इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं शर्म आई कि मैं बेवा है, इनके साथ क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ना कोई रिश्तेदारी है, कोई चलो कोई रिश्तेदारी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये खतून जो है इनको 1 साल हो चुका है कि अपनी दी हुई रकम वापस लेने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर ये मजबूर हो चुकी हैं। और वो ताकतवर इंसान जो है, कब्जा माफिया, जो मैं तो यही कहूँगा कब्जा माफिया है वो, कि जो के असली की जोर पर इनके घर पर भी आता है और तशद्दुद का निशाना बनाता है, और ये कहता है कि मैं तेरे बेटे को भी मार दूंगा। और इनका ये भी कहना है कि उसका ये कहना है कि मैं बंदा मार के थाने नहीं जाता। ये जो है, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारी पंजाब पुलिस कहाँ है, वो क्यों नहीं ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती। इन बेचारे बेवा औरतों को इनकी लूटी हुई रकम वापस क्यों नहीं दिलवा पा रहे? वो कह रहे हैं कि नहीं है, जो भी मिलना है वो कहते हैं कि वो गाँव में है, वो निकल जाना, उसकी ज़मानत होगी तो वो गया। अगर वो चला गया तो रकम कौन देगा? वो इस बात पे तो एग्री नहीं हो रहे। वो कह ही नहीं रहे कि आपकी रकम गई हुई है। कभी कहते 6 लाख गई हुई, कभी कहते 8 लाख गई हुई, कभी कहते 9 लाख गई हुई। भाई यही बात होती, करोड़ की तो वो बात ही नहीं ना करते कि इतनी गई हुई है। ना वो ज़मीन दे रहा है तो ना वो पैसा दे रहा है। जी नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि लाहौर के 86 पुलिस स्टेशन हैं और 19 से ज़ायद पुलिस चौकियाँ हैं। 89 ने एक अज़म उठाया है, वो ये है कि तमाम लाहौर के थानों में विजिट करेगी और जितने भी साहिल जो है जिनको इंसाफ नहीं मिल पाया अब तक, 89 न्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं, 89 न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी दादरसी के लिए, उनके इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ जो है उनकी आवाज़ के साथ बुलंदोबाला करेगी और उनको इंसाफ दिलवाने में उनका साथ देगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।